Hello students, myself Sonika Yadav from HCI, and it is my lecture number 2 of the 10th biology class, and in this lecture I want to discuss with you the asexual reproduction in multicellular organism. So asexual reproduction in multicellular organism is through the fragmentation, regeneration, budding and spore formation. So first of all, the spore formation also occur in the unicellular one. The simple multicellular forms, that is the fragmentation, is used as the main mode of asexual reproduction in the Spirogyra. Okay, so first of all, what are the differences between the unicellular and multicellular about their mode of reproduction? So in the unicellular organism, the same cells which function as the body of the organism it also get transformed into reproductive cell. So बच्चा जो अगर हम बात करें reproductive cell है वो कोई different cell नहीं है, that is the same cell like the main body of the organism. But multicellular organism में specific cells हैं that take part in the reproduction, like the somatic cells which help in the normal growth and development, and the germ cells which take part in the reproduction. In the unicellular organism, reproduction are the simple. In the multicellular organism, reproduction is a complex process. Asexual reproduction that occur by the fission, budding and spore formation. In the multicellular, it is done by fragmentation, regeneration, budding, spore formation and the vegetative reproduction. These are the asexual mode of reproduction in the multicellular, and these are the asexual mode of reproduction in unicellular. In unicellular, there is no special sex cells or the sex organs, but in multicellular, special cells for the reproduction are present. Sexual reproduction occur through the isogamy or heterogamy. Isogamy होता है बेटा same type of gamete production. Heterogamy होगा बेटा different type of the gamete production. It is commonly oogamous. Oogamous condition वो होती है बेटा जिसमें female gamete that is ova large in size and non-motile, while the male gamete that is the small in size and motile. So beta ये होगा oogamous condition. Oogamous condition in which fusion of the male and female gamete takes place, but the female gamete is always bigger than the male gamete. Next topic is the fragmentation. Fragments. Fragment का मतलब होता है to break. So ये process है breaking up of the body of an organism into two or more parts. उनको कहेंगे fragment बेटा. And each of which grow into new individual. वो सारे के सारे new individual में grow हो जाएंगे. ये algae में, fungi में, bryophytes में और बेटा another worms में पाया जाता है. बेटा जो इसका कारण है फ्रेगमेंटेशन का वो मैकेनिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है और डीके ऑफ द ओल्डर पार्ट हो सकता है बेटा. सो जो फ्रेगमेंटेशन है कॉमन मेथड है किसमें, मल्टीप्लिकेशन इन द ग्रीन फिलामेंटस एल्गी स्पायरोगायरा में. ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा भी था कि नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पायरोगायरा. सो स्पायरोगायरा दैट रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन. सो सबसे पहली बात ये जो डायग्राम है दैट इज द स्पायरोगायरा. सो बेटा स्पायरोगायरा में अगर आप देखें तो यहाँ पर पाया क्या जाता है, यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है वो फिलामेंटस फॉर्म में है एंड स्पायरोगायरा इट इज ग्रीन एल्गी, सो इट इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू स्पायरोगायरा. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिशन एंड द फ्रेगमेंटेशन. सो फिशन क्या था बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था. फ्रेगमेंटेशन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. जो फिशन था बेटा वहां पर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन था, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म डिवाइड था. ओके,
सो फ्रेगमेंटेशन में अगर बात करें तो सेल ग्रो होगी एंड डिवाइड आफ्टर फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले सेल की ग्रोथ हुई, देन डिवाइडेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन से यहाँ हुआ क्या था, नए ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। बट पीसेस ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल ग्रो इनटू द न्यू डॉटर इंडिविजुअल। छोटे छोटे पीसेस हैं वो डेवलप होंगे इनटू द न्यू इंडिविजुअल। फिशन क्या है, द डॉटर फॉर्म्ड आफ्टर फिशन आर इक्वल, बट फ्रेगमेंटेशन में डिपेंड करेगा बेटा ऑन द साइज ऑफ द फ्रेगमेंट। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दोनों डॉटर सेल्स का साइज इक्वल हो। नेक्स्ट इज द रीजनरेशन। री मीन्स अगेन एंड जनरेट टू गेट बैक। सो रीजनरेशन में बेटा होता क्या है, ये एबिलिटी है टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट और रिप्लेस द वन द लॉस्ट थ्रू द एक्सीडेंट और ऑटोटॉमी, सेल्फ एम्पुटेशन। दैट मीन्स रीजनरेशन क्या है, तो बेटा गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी कट पार्ट। कोई पोर्शन बॉडी का कट गया है, उसी से पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का दोबारा डेवलपमेंट हो जाना, ये कहलाता है बेटा रीजनरेशन। सो रीजनरेशन बेटा, ये अगर हम बात करते हैं, इस जो रीजनरेशन था डिस्कवर किया था बेटा ट्रैम्बले ने हाइड्रा के केस में। सो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ये एक डायग्राम है प्लेनेरिया की बॉडी बेटा डिफरेंट पार्ट्स में कट हो गई एंड ईच एवरी पार्ट दैट डेवलप इनटू अ न्यू प्लेनेरिया। दैट मीन्स क्या था ऐसा यहाँ पर। सो जो बेटा रीजनरेशन है वो किसकी वजह से हुआ है, जो रीजनरेशन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल रिजर्व और द स्टेम सेल्स, और वी कैन से उन्हें हम कह सकते हैं बेटा टोटिपोटेंट cells. They have the ability to grow as a new organism. So जो regeneration है due to the presence of the special nerves or the stem cells and de-differentiate and differentiated cells. De-differentiate and differentiated cells का मतलब है बेटा differentiated cells वो होती हैं जो एक अपना स्पेशल फंक्शन ऑब्टेन कर लेती हैं। De-differentiated वो सेल्स हैं जो परमानेंट बन चुके, एक ऑर्गन बना दिया, देन अगेन दे स्टार्ट डिवाइडेशन। सो यहाँ पर होगा क्या कि जो ऑलरेडी सेल्स डिवाइडेड हैं, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑब्टेन कर रही थी, वो दोबारा क्या करती हैं, कैपेसिटी ऑब्टेन कर लेती हैं ऑफ द डिवीजन और वो नया ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर देती हैं। दे फर्स्ट प्रोलिफरेट एंड फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल। एक बार स्टार्टिंग में वो डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे और बहुत सारा नंबर ऑफ सेल्स बना लेंगी and cells then undergo differentiation, organ formation start हो जाएगा, ओके, और वही एक पूरा यंग वन डेवलप हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है बेटा बडिंग। बेटा जो बडिंग है, बडिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें होता क्या है, वन और मोर आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देन सेपरेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ये है बेटा हाइड्रा। हाइड्रा बेटा जब हाइड्रा को प्रॉपर अमाउंट में फूड मिल रहा है तो उसकी बॉडी से कुछ आउटग्रोथ निकलने लगती हैं जिनको बड कहा जाता है। और ये आउटग्रोथ बेटा जब तक इनके ऊपर टेंटिकल्स डेवलप ना हो जाए तब तक ये आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी के साथ अटैच है। सो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे बड की ग्रोथ हो रही है एंड यहाँ पर जो टेंटिकल्स डेवलप हो गए हैं, अब ये बड यहाँ से डिटैच हो जाएगी। डिटैच का मतलब सेपरेट आउट हो जाएगी और सेपरेट आउट होने के बाद दे सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। सो ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक या बहुत सारी आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच देन सेपरेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। अब यहाँ पर होगा क्या, स्टेम सेल्स जो स्पेशलाइज्ड सेल्स थी, स्टेम सेल्स वो प्रोलिफरेट हो रही है ड्यू टू द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस। रिपीटेड सेल डिवीजन हुई है एट अ स्पेसिफिक साइट एंड वो ये स्पेसिफिक साइट पर रिपीटेड सेल डिवीजन हुई, वहां से क्या हुआ, सेल की क्या हो गई बेटा, प्रोलिफरेट हुई है, सेल की ग्रोथ हो गई है और वहां पर क्या बन गया है, बड बन चुकी है। बड मल्टीप्लाई बाय द बडिंग अंडरगो फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल मतलब अच्छा कंडीशन है जिसमें फूड ज्यादा मिल रहा है, वाटर कंटेंट ज्यादा मिल रहा है। बड
डेवलप होगी बेसिकली ऑन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, ग्रो होगी इन नॉर्मल साइज। जब इसके ऊपर टेंटिकल्स आ जाते हैं, ये पिंच ऑफ होकर सेपरेट होकर एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट बेटा डिफरेंस बिटवीन द फिशन एंड द बडिंग। बेटा फिशन की बात करें टू स्प्लिट, यूनिसेलर में था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुआ था। बडिंग क्या है? बडिंग अकर इन बोथ यूनिसेलर एंड मल्टी सेलुलर। फिशन में 2 और मैनी डॉटर सेल्स बनी थी, बट बडिंग की अगर बात करें तो पेरेंट डज नॉट डिवाइड, पेरेंट रहेगा इसमें, पेरेंट एज इट इज है, नया डॉटर बन जाएगा। बट फिशन में क्या होता था, पेरेंट सेल बेटा प्रेजेंट नहीं होती थी जब वो डिवाइड होकर न्यू डॉटर सेल्स बना देती थी। सो पेरेंट डज नॉट डिवाइड बट गिव राइज 1 और मोर आउटग्रोथ टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। पेरेंट की आइडेंटिटी क्या हुई? लॉस्ट हुई। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। एंड बडिंग में क्या है, पेरेंट की आइडेंटिटी सेम रहेगी, रिटेन रहेगी ड्यूरिंग द बडिंग प्रोसेस। यहाँ पर सीक्वेंस क्या था, न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म डिवाइड। बट अगर हम बात करते हैं बडिंग इन द यूनिसेलुलर फॉर्म, सेलुलर आउटग्रोथ डेवलप फर्स्ट, पहले सेल बना है, देन न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, आफ्टर दैट न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू द बड एंड देन the separate bud develops and separate out from the parent body. Okay, so budding observed in the planaria, yeast, hydra, and fission observed in the amoeba and paramecium. बेटा एक क्वेश्चन आता है कि यीस्ट क्या शो करता है? बेटा यीस्ट भी बडिंग मेथड शो करता है। ओके, यीस्ट में अगर हम बात करते हैं, यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। न्यूक्लियस यहाँ पर क्या है बेटा, फर्स्ट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ग्रोथ होगी और साथ में एक स्पेसिफिक साइट पर क्या होगा, सेल में बड बन जाएगी। ओके, देन न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होकर किसमें चला जाएगा, बड में चला जाएगा। ओके, एंड देन इस बड की ग्रोथ होगी और ये पेरेंटल बॉडी के साथ अटैच्ड होगी। सो ये है बेटा सिक्वेंशनल डायग्राम, और फाइनली ये बड सेपरेट आउट हो जाएगी और एक डॉटर सेल और एक पेरेंट सेल एज इट इज बच जाएगी। सो यहाँ पर एक वर्ड आता है, आइडेंटिटी ऑफ द पेरेंट इज रिटेन्ड, मतलब आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी क्योंकि नई डॉटर सेल्स बन रही है और पेरेंट प्रेजेंट है, सो आइडेंटिटी है। सो दोनों जनरेशन एक साथ पाई जा सकती हैं, पेरेंटल सेल एज वेल एज द डॉटर सेल। बट अगर वहीं हम फिशन की बात कर लें तो वहां पर पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। पेरेंट होगा तब डॉटर सेल्स नहीं होगी और डॉटर सेल्स होंगे तब पेरेंट बॉडी अवेलेबल नहीं होगी। जी, नेक्स्ट इज द स्पोर फॉर्मेशन और द स्पोरुलेशन। बेटा स्पोर फॉर्मेशन, सबसे पहली बात ये मोस्टली बैक्टीरिया में देखने को मिलती है और बेटा ये फंजाई में ऑब्जर्व की जाती है। सो फंजाई एक मल्टी सेलर क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म है, रेस्ट देन द यीस्ट। यीस्ट क्या था, दैट इज द सिंगल सेल फंजाई है। ओके, बैक्टीरिया मोस्टली यूनिसेलुलर है बट दे आर प्रेजेंट इन द कॉलोनी फॉर्म। सो स्पोर्स क्या है? स्पोर्स बेटा बहुत ही छोटे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही छोटे, वेरी माइन्यूट यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। और बेटा ये क्या है, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और डिस्पर्स्ड होते हैं टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल ऑन इट्स जर्मिनेशन। स्पोर बेटा दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या है, वॉल जो प्रोटेक्ट करती है अपने अंदर स्पोर्स को। ये किस में पाया गया है, बैक्टीरिया में पाया गया है, प्रोटिस्ट में पाया गया, एल्गी और फंजाई में। स्पोर्स क्या है, मोटाइल हो सकते हैं, मूवेबल हो सकते हैं, इन सम एक्वेटिक फॉर्म, उन्हें हम कहेंगे जू स्पोर्स। जू स्पोर्स क्या होते हैं, जिन स्पोर्स के पीछे फ्लैजिला पाया जाए। ओके, और यूलोथेरिक्स, बट इन मोस्ट ऑफ द केस स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है और उस हार्ड कवरिंग को कहते हैं बेटा सिस्ट। ये थिक वॉल की जो कवरिंग है उसे सिस्ट कहेंगे। ये बचाती है स्पोर्स को इन द एडवर्स कंडीशन। सो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस कंडीशन को वो अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है, ड्राफ्ट हो सकता है, सूखा हो सकता है, हाई या फिर लो टेम्परेचर हो सकता है। सो दैट सिस्ट वॉल प्रोटेक्ट द स्पोर इनसाइड इट। जब कंडीशन अच्छी आएंगी, जब कंडीशन लाइक द फेवरेबल कंडीशन आएगी, स्पोर्स
के लिए उन्हें बेटर न्यूट्रिएंट मिलेंगे और मॉइस्चर मिलेगा, दैट टाइम द स्पोर वॉल दैट ब्रेक, और ब्रेक होगी तो स्पोर्स क्या होगा बेटा, स्पोरेंजियम डेhiscence का मतलब होता है दैट इज द स्पोरेंजियम वॉल ब्रेक एंड स्पोर्स रिलीज फ्रॉम द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से बाहर निकल जाएंगे। ओके एंड जिसके ऊपर ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट है ये है बेटा दैट इज द स्टॉक, और इस स्टॉक को कहते हैं बेटा दैट इज द स्पोरेंजियोफोर। ओके so this sporangium wall burst and the minute spores they mix with the air and they move with the air. okay so आपने एक नॉर्मली ब्रेड स्लाइस देखा होगा, अगर आप इन द लाइक मॉइस्चर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं लाइक फैब में, अगर आप फैब दिसंबर में आप ब्रेड को 2 दिन बाहर ओपन छोड़ देंगे तो ब्रेड के ऊपर ब्लैक कलर का फंगस लगने लग जाता है। सो वो होता है बेटा ब्रेड मोल्ड, दैट इज द म्यूकर। म्यूकर और राइजोपस ब्रेड मोल्ड के नाम से जाने जाते हैं, विच रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर अब जर्मिनेट होगा तो स्पोर से जो जर्मिनेट हो रहा है तो वहां पर क्या बनेगा बेटा, सुटेबल कंडीशन में ये नया माइसेलियम बना देता है। ओके सो ये था बेटा ऑल अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।